السلام علیکم ناظرین، ہم آج موجود ہیں بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں، اور یہاں جو بڑیچ مارکیٹ اس میں ایک مشہور کارپیٹ کی دکان ہے، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے سراج ترین صاحب، جو بتائیں گے کہ یہ قالین کہاں سے امپورٹ ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا کوالٹی آتی ہے اس کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ میڈیا کا اور آپ کی پوری ٹیم کا مکمل میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ہماری جو کارپیٹ ہے یہ 13 لینتھ کے میں آتے ہیں۔ 13 لینتھ میں یعنی جو ایرانی ہے اس میں 13 فٹ میں آتے ہیں، اس میں پاکستانی بھی آتے ہیں، ترکش بھی آتے ہیں۔ عام جو سینتھیٹک کارپیٹ ہے وہ 12 فٹ میں بھی آتے ہیں، 10 فٹ میں بھی آتے ہیں۔ اس میں جو عام سینتھیٹک جو کارپیٹ ہے جو 12 اور 10 کے لینتھ میں ہے، یہ عموماً قالین کے نیچے بچھتے ہیں، اس کے اوپر قالین بچھتے ہیں۔ رہ گیا جو عام جو ترکی والے ہیں 13 لینتھ میں جو ہے نا، یہ بالکل موٹے کارپیٹ ہوتے ہیں، یہ جو ہے بالکل عام قالین کی طرح اس کو بچھاتے ہیں۔ یہ تقریباً 13 کا لینتھ میں ہوتے ہیں۔ ترکی اس میں اچھی کوالٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایرانی کا جو ہے نا بہترین اور اعلیٰ کوالٹی ہوتی ہیں۔ یہ سارے اسی میں ہے۔ اس میں کلر بھی زیادہ ہے، ڈیزائن بھی زیادہ ہے، بہت اچھے کوالٹی کے کارپیٹ ہے، اور تقریباً گارنٹی کے ساتھ ہے، واشیبل ہے، بڑے اچھے کارپیٹ ہیں ہمارے پاس، اعلیٰ ڈیزائن ہے، اعلیٰ کوالٹی ہے، بہترین کوالٹی کے ہیں ہمارے سارے۔ سراج صاحب آپ بتائیں گے یہ جو قالین کی کوالٹی میں فرق ہے، یعنی کہ جو پاکستانی میڈ ہے اور یہ جو ایران سے بنے ہوئے آتے ہیں جہاں سے بھی آتے ہیں، تو اس پہ کیسے مطلب ایک عام گاہک اس چیز کو جانچ سکتا ہے یا پتہ لگا سکتا ہے؟ جی جان یہ ہے کہ جو ایرانی کوالٹی ہوتے ہیں اس میں جو ہے نا وہ کوالٹی اس کی ذرا اچھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں جو پر فٹ کے حساب سے جو کارپیٹ بنتے ہیں، ایرانی میں جو پر فٹ کے حساب سے اس میں وہ زیادہ قالین یوز ہوتا ہے، تقریباً 1 فٹ میں وہ 25 سے 30 کلو جو ہے نا وہ کاٹن یوز ہوتا ہے۔ باقی عام کارپیٹ میں جو ہے نا وہ 18 سے 15 کلو یوز ہوتا ہے فٹ پہ، جبکہ ایرانی اس وجہ سے کوالٹی میں بہترین ہوتے ہیں، اور اس کی قیمت بھی جو ہے نا، ہم جو ترکی کے عام کارپیٹ اگر 150 تک ہے تو اس میں اچھا ترکی کے جو ہے تقریباً وہ 250 روپے کے، ایرانی جو عام جس کو ہم لوگ 500 شانہ کہتے ہیں یا 700 شانہ کہتے ہیں یا 1200 شانہ کہتے ہیں، اس میں جو عام 440 یا 500 شانہ ہے یہ تقریباً 200 سے 250 تک ہے، 220 تک ہے۔ اس کے بعد جو 750 شانہ ہے یہ تقریباً 350 سے 400 ہے۔ ایک 1200 شانہ جو ہوتا ہے بالکل جو پیور وولن ہوتا ہے وہ تقریباً 700 650 550 تک ہوتا ہے۔ ایرانی جو کوالٹی ہے وہ بہت بہترین ہے، زبردست چیز ہے، بڑی اچھی چیز ہے۔ ترکی بھی اچھی چیز ہے، ترکی بھی اچھی کوالٹی کی ہے۔ سراج صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو کارپیٹ آپ کے پاس موجود ہے اس کے بارے میں کہ یہ کہاں کے بنے ہوئے ہیں اور اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں؟ ہاں محسن بھائی، یہ سب سے پہلے ایرانی ہے، یہ ایرانی کارپیٹ کے 13 کے لینتھ میں جو ہے نا یہ جو ہے نا
ज़बरदस्त चीज़ है, ये अच्छा है। कालीन भी बेहतरीन है, 13 कलंट में बने हुए, इसके जो बॉर्डर है वो बंद है, सिलाई हुआ है आम कालीन जैसे। इसके बाद जो है ना फिर ये जो है ना हमारे यहाँ तुर्की की क्वालिटी शुरू होती है, जिस तरह उस ईरानी के बाद ये तुर्की की क्वालिटी होती है। ये भी 13 फुट के लेंथ में है, आते जाएँ यहाँ से। और इसके बाद जो है ना ये जो है ना ये भी हमारे पास ईरानी क्वालिटी के वो 13 के लेंथ में, इसमें कलर भी डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। इसके बाद ये फिर तुर्की का जो है ना जो सबसे बेहतरीन, जिसको हम 3000 तक धागे में, ईरानी में तो हम उसको शाने के हिसाब से देते हैं, ये तुर्की में जो है ना 3300 धागा या 3000 जो धागा होता है, ये इसमें बने होते हैं। ये सारे तुर्की वाले हैं। इसके बाद फिर ये ईरानी क्वालिटी है, ये भी तकरीबन 440 शाना इस तरह के होते हैं, बड़ी अच्छी वैरायटी के होते हैं। इसके बाद ये भी तुर्की के कारपेट है यहाँ तक। इसके बाद ये जो है ना ये फिर आम ईरानी होते हैं, थोड़े हल्के होते हैं, सिंथेटिक जिसको हम कहते हैं, 13 का लेंथ में बना हुआ है। ये भी बड़ा अच्छा कारपेट होते हैं यहाँ तक। इसके बाद ये हमारे पाकिस्तानी कारपेट है, बड़े अच्छे कारपेट है, फोम वाले में बने हुए हैं, 12 का लेंथ में। ये सारे इसमें अच्छे डिज़ाइन है, वैरायटी भी है सारे। जी सिराज भाई, आपके पास आने वाला जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, वो ज़्यादातर किस कालीन की या किस चीज़ को प्रेफर करते हैं या उन लेने की वो रखते हैं कि जी हम ये कारपेट लें? जी मोहसिन साहब, हमारे पास जो अक्सर गाहक होते हैं वो अक्सर जो मोटा कारपेट है 13 का लेंथ में, जो उलन वाले होते हैं, उसके तुर्की के, ईरानी के, उसकी मांग करते हैं, क्योंकि अभी कोयटा में जो है ना वो अक्सर सर्दी पड़ती है। सर्दी की वजह से वो मोटे कालीन यूज़ करते हैं। आम जो सिंथेटिक कारपेट है ये कालीन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन हमारे जो अक्सर बलूचिस्तान है या कोयटा के जो लोग हैं या आसपास के जो रहायशी लोग हैं, वो अक्सर मोटे कारपेट यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्दी की वजह से आम कारपेट से मोटे कारपेट अच्छे भी होते हैं और गर्म भी होते हैं। जी मोहसिन भाई, हमारे पास जो ये मौजूद है इसको हम कालीन ही कहेंगे। इसमें कालीन की जो क्वालिटी है तकरीबन इसमें 4-5 किस्म के हैं। कालीन की जो लंबाई चौड़ाई है 10, 13, 8, 11, 7, 10 एक आम कालीन होते हैं जो हमारे यहाँ बलूचिस्तान के लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। एक इसमें ये सेंटर पीस होते हैं छोटे छोटे, जो आम सिंथेटिक कारपेट बिछा लेते हैं, फिर ये सेंटर में रखते हैं। अभी जैसे ये है 4-6 है, इसके बाद ये 5-8 है, इसके पास ये 7x10 का होता है, ये 8-11 का होता है। इसी तरह ये सारे जो है ना मोहसिन भाई, ये सारे जो है ना ईरान के बने हुए 1200 शाना में उलन है, प्योर स्पेशल। ये उलन में 700 शाना में बने हुए, 1000 शाना में बने हुए, 500 शाना में बने हुए। एक आम लेलुन जो होता है उसमें हल्के फुल्के होते हैं। ये अक्सर जो है ना यहाँ से लोग जो इस्लामाबाद, कराची या लाहौर, जहाँ से पाकिस्तान से बहुत से लोग आ जाते हैं, ये बतौर गिफ्ट ये चीज़ें वहाँ पे ले जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये सारे बाहर वाली चीज़ें। इसके प्रिंट के बारे में बताएं कि कितना मुश्किल होता है इसके ऊपर इस तरह का डिज़ाइन देना और ये सारा कुछ। हाँ, ये बात है। इसमें मैं आपको एक दाना खोल के बता देता हूँ। ये मोहसिन भाई 4x6 है, एक ईरानी 700 शाना में है, तकरीबन कीमत भी इसकी अच्छी है। इसके ये मुख्तलिफ वैरायटी प्रिंट इसके ये तकरीबन 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने में इसके नया प्रिंट आ जाते हैं। अभी जैसे ये आ गया, ये 3x5 का है, ये जिसको हम अफगानी या मोरी फूल जो भी कहते हैं, ये भी इसके बड़े मशहूर है। ये सारे इसी तरह इसमें मुख्तलिफ कलर के लगे हुए हैं। तकरीबन अगर बड़े कालीन में देखा जाए 10-13 का एग्जैक्ट 1000 शाने इसमें हमारे पास लगे हुए। 1000 शाना, 1200 शाना, 700 शाने काफ़ी महंगे हैं। बड़ी अच्छी चीज़ है, ख़ासकर बलूचिस्तान के हवाले से ये बहुत बेहतरीन है। तो आपके पास ये ज़्यादातर ईरान से आ रहे हैं या तुर्की से आप मंगवाते हैं? नहीं, तुर्की का तकरीबन वो कारपेट आ रहा है। कालीन तो पहले बहुत आते थे, अभी कम हुआ गए, क्योंकि अभी जो कालीन की बजाय उसके 13 लेंथ में जो कारपेट है वो आ रहा है। अभी अक्सर जो कालीन है वो तकरीबन ईरान से आ रहा है। जितने भी हैं सारे कालीन ईरान से आ रहे हैं। जी, यहाँ की सनत, पाकिस्तान की सनत और ईरान की सनत में आप क्या फ़र्क समझते हैं कि ये कैसे मतलब इतना बड़ा जो डिफरेंस है कि लोग मांगते हैं ऐसे ईरानी कारपेट और ये सारी चीज़ें, तो उसके बारे में आप बताएं कि कितना बड़ा फ़र्क है जो कि पूरा हो सकेगा या किस तरह मुमकिन होगा? मोहसिन भाई, जो है ना बलूचिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए, यहाँ जो बार्डर है ईरान के या दूसरे बार्डर है, वहाँ से ये चीज़ें आती हैं। पाकिस्तानी जो है ना कालीन वो तो भी अच्छे हैं, लेकिन अक्सर यहाँ के जो लोग, अभी इसका एक ज़हन बना हुआ है, अक्सर यहाँ लोग आते हैं हमारे दुकान में, पूछते हैं कि पाकिस्तानी, हम अगर कोई कार पाकिस्तानी दिखाते हैं वो इतना यूज़ नहीं करते जितने ईरानी। एक तो मज़बूत है, फिर जो है ना अवेलेबल है हर रंग में, हर डिज़ाइन में, ख़ास कर जो है ना जो कमरे के सेज बने हुए उसके मुताबिक ये
سارے اویلیبل ہے, سستے بھی ہے. ابھی کچھ ڈالر یا تمن کی وجہ سے آگے پیچھے ہو گئے, نہیں تو پہلے بہت اچھے تھے, سستے تھے. دوسرا بات ہے ایرانی جو چیزیں وہ بہت پائیدار ہوتے ہیں, بہت اچھی چیزیں ہیں. محسن بھائی, یہ عام کارپیٹ جو ہے نا جس کو ہم لوگ 5-8 کہتے ہیں, یہ عام گھروں میں جو ہے نا لوگ عام سینتھیٹک کارپیٹ بچھا لیتے ہیں. اس کے بعد یہ سینٹر پیس جو ہم کہتے ہیں یہاں کے لوگ, یہ پھر سینٹر پہ آ جاتا ہے. اس میں تین جو ہے نا اس کے سائز ہوتے ہیں, 4-6 ہے, 5-8 ہے اور 3-6 جو ہے نا اس کے سائز ہوتے ہیں. وہ پھر کمرے کے لحاظ سے دیکھتے ہیں, اگر کمرہ زیادہ بڑا ہو تو یہ پھر 5-6-8 بچھا لیتے ہیں, اگر کمرہ چھوٹا ہو اس میں پھر 3-4 یا 4-6 جو ہے نا یہ بچھا لیتے ہیں.